तमाम दोस्तों का This meeting is being recorded. मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं कि आज आप तशरीफ लाए हैं और इस जूम कॉन्फ्रेंस में जो कि इकबाल डे के तनाज़ुर में मनाई जा रही है, इसमें आप शरीक महफिल में हैं। आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज हमने पूरी दुनिया से हमारे सीनियर्स के साथ साथ खवातीन विंग की नुमाइंदगी भी इंश्योर की है, ताकि ओवरसीज से पिछली कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया वालों को मौका दिया था। इस दफा हमने खवातीन विंग की नुमाइंदगी के लिए भी कुछ बहनों को दावत दी है। कोशिश करेंगे कि उनका हिस्सा भी डालें। किसी भी इंतजार से किए बगैर कार्रवाई तिलावत से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हाउस रूल्स। कोशिश करेंगे तमाम मुल्कों को नुमाइंदगी दी जाए। सीनियर जूनियर का ख्याल रखें। अगर आपके सदर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे वो बोलें। जब वो तमाम हो जाए तो कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों को भी मौका मिले। और अगर किसी को ना भी मौका मिले, क्योंकि अगर हम वेट कर रहे हैं कि जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी ज्वाइन करें और आज के से खिताब करें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये तमाम मराहिल जो हैं वो लगभग 1 घंटे में तय हो। जी, तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज नैर शमस साहब को, तिलावत करें। जी हाफिज शमस। अब जिसको नाम लिया जाएगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा पहले, फिर जी बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ نیر شمس صاحب، کوآرڈینیٹر فرام ساؤتھ ایشیا۔ اب میں نعت شریف کے لیے اینی والنٹیئر جو نعت کے کچھ اشعار کہہ سکیں۔
جی علی جی شراف میں پڑھ دوں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہی تو قسمت چلے گی میری یہیں سے میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے علی شرافت صاحب کے صدر ہیں آسٹریا سے. اب میں بلا تاخیر آج کے جو موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. ہماری حکومت نے جب بھی ہمیں موقع ملا، مسلم لیگ نون ہو یا پی ایم ایل کی حکومت ہو، پی ایم ایل لیڈ یا الائیڈ حکومت ہو، ہم نے ہمیشہ قائدین، قائد اعظم، علامہ اقبال، ان کو عزت بھی بخشی ہے. اور جہاں ہمیں موقع ملے تو ہم نے ان کے دن اچھے طریقے سے بھی منائے ہیں. اسی ڈرائیو کا حصہ ہے کہ آج کی ہم نے یہ محفل سجائی ہے تاکہ پوری دنیا سے مسلم لیگ نون کے تمام صدور ان کے ساتھی حصہ لے سکیں، قائدین کو سن سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکیں، کیونکہ وی آر ویری ٹائم پریس. تو آج کی جو میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کوشش میں کروں گا ایک ایک منٹ جو ہے مین اسپیچز سے پہلے بڑے کیپٹل سے شروع کرتے ہوئے باری باری سب کو باری ملے. اگر آپ کچھ اشعار کہہ سکے علامہ اقبال کے، خیالات کا اظہار کر سکے، بائی آل مینس. نہیں ہے تیرا نشمن کسرے سلطانی اس کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو ہم آگے چلتے ہیں جی. رحیل ڈار صاحب کو دعوت خطاب دیتے ہیں، صدر مسلم لیگ نون یو ایس اے. رحیل ڈار صاحب. جی بھائی. جی السلام علیکم سب حضرات. جناب حسن ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ ہم تمام جو اوورسیز میں پاکستانی بستے ہیں جو مسلم لیگ نون سے وابستگی رکھتے ہیں، ہم اپنے قومی جو دن ہیں ان کو نہ صرف منائیں بلکہ جو ہمارے جو بیسکلی جماعت کی اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے پارٹی کا، اس کو بھی ہم پروموٹ کریں. اور مسلم لیگی ہوتے ہوئے اور نواز شریف کے ساتھی ہوتے ہوئے مجھے اس بات سے فخر ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے اساس کو ہمیشہ اپنی روایات، اپنی جماعت کی پالیسی اور جو ہم نے ایک اپنا جو فٹ اسٹیپ جو آگے رکھا ہے اس میں قوم کے سامنے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے. تو آج علامہ اقبال کا دن ہے. اس مناسبت سے میں صرف مختصر وقت ہے تو ایک منٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے بنانے میں جو ہمارے اکابرین تھے ان میں علامہ اقبال کا نام سر فہرست لوگوں میں آتا ہے، اور انہی کا ویژن ہے کہ آج ہم جس طرح سے ملک کو بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ علامہ اقبال کے افکار کو ہم ذہن میں رکھیں، ان کی خودی کا جو فلسفہ تھا اس کو ذہن میں رکھیں، انہوں نے جو اسلامی امہ کا جو کانسیپٹ دیا اس کو ذہن میں رکھیں، اور مسلمانوں کی جو خودداری اور جو خودی کا جو فلسفے پہ بنیاد رکھتے ہوئے عزت نفس کا جو کانسیپٹ دیا علامہ اقبال نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس سے بہت مماثلت رکھتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نے جو ہمیشہ پالیسی رکھی ہے اسی میں یہی ہے کہ اپنی خودی، اپنی سیلف رسپیکٹ، قومی حمیت اور خودی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کو عزت دیں، دلوائیں، اور ملک میں جمہوری اور پاکستان میں جو انصاف کا جو ایک بیانیہ ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں. میں حضرات صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دوسرے دوستوں کو سنیں. اس کے ساتھ ہی میں مائک واپس حوالے کرتا ہوں ملک صاحب آپ کو. جزاک اللہ رحیل ڈار صاحب، صدر مسلم لیگ نون یونائٹڈ اسٹیٹس. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جی نذیر بٹ صاحب کو، سرپرست ہیں ناروے سے. ان کے ساتھ شاید تنویر صاحب بھی بیٹھے ہیں.
जो सदर हैं PMLN नॉर्वे, नजीर भट्ट साहब अनम्यूट कर ले आप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपकी काफियों से हम खाली यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में भी साथ हमारा रब्ता हो रहा है आपके साथ से। तो आपकी बहुत मेहनत है और इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है पूरे यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे जानी पहचानी जाती है और अपने लीडर का जो हम मिशन है उसके साथ काम कर रहे हैं। आज चूंकि यौम इकबाल है, उनकी पैदाइश का दिन है, इस लिहाज से पहले जैसे अपने सदर अमेरिका के भाई हमारे उन्होंने बताया है कि भाई ये उनके बड़े पाकिस्तान के बनाने में इनकी तक दो के जहाँ उनकी कावज से ये पाकिस्तान मुआवजे वजूद में आया। तो हम जो है हर मौके पर कायद आज़म का दिन हो या कायद आज़म का दिन हो या मियां नवाज साहब का दिन हो, हम नॉर्वे में बाकायदा हर साल मनाते हैं। तो इस तरह अब आपके प्रोग्राम में भी हम इस तरह शामिल हुए। थैंक यू। शायद साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी जी जरूर, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दिन है इकबाल डे के हवाले से, तो वो हम मनाने जा रहे हैं, हमारी पूरी मुस्लिम लीग। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक सस्ती के दाने के तरह मतलब सारे जितने भी सदूर हैं और जितने भी बाकी ओहदेदार हैं उनको परोड़ दिया है सस्ती के दानों की तरह। इकबाल डे एक मतलब अलामा इकबाल का जो है, एक मिनट जी जी भाई जी उसमें ऐसा है कि छोटी सी एक तकरीर है, अगर आपके पास 2-3 मिनट होंगे तो मैं जरूर इसको। नहीं 2-3 मिनट, 1 मिनट भैया, 1 मिनट की बात है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोनों का। जी 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 आप लाइन देखें ना कितने लोग हैं, पहले सबको मौका देना ना। जी ठीक है। बहरहाल मेरा आपका बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। मेरा बस यही है पैगाम कि हम नवाज साहब के साथी हैं इंशाल्लाह। जैसे ख्वाब देखा था इन्होंने अलामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का, और कायदत ने उसकी ताबीर की, उसकी ताबीर करके उसको अमली जामा पहनाया। इसी तरह हमारे नवाज साहब ने इसको बहुत ही आगे लेके गए। जैसे हमारे नवाज साहब ने, उनके बहुत ज्यादा काम थे, एटमी धमाके थे, इसके अलावा मोटरवे हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो नवाज साहब इसको तरक्की की राह पे इसको गामजन किया पाकिस्तान को। तो इंशाल्लाह हम नवाज साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान, हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप अपना छोटा सा पैराग्राफ तैयार रखें, और शेर तैयार किया तो शेर तैयार रखें ताकि आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके। मैं नहीं चाहता कि कोई दोस्त रह जाए, कोई मुल्क रह जाए, मेनली ये है जी। डॉक्टर अबुल फजल साहब प्रेसिडेंट हैं, PhD हैं और प्रेसिडेंट हैं PMLN ऑस्ट्रेलिया। जी डॉक्टर अबुल फजल। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। पहले तो पूरी कौम को पाकिस्तान की जीत के ऊपर मुबारकबाद। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंच गए और मौके की मुनासबत से अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की यौम पैदाइश के हवाले से हम लोगों को फख्र करना चाहिए कि हम उस मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं जिसका हिस्सा अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब खुद थे, और हमारी पार्टी स्ट्रगल का हिस्सा है। मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने के लिए उसने कुर्बानियां दी हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सूरत हाल ये है कि हमने वो जंग जीत के फौज जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो एपॉलिटिकल हो गई है, और जबकि हमारे मुखालिफ में जो है वो अब उसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है जितने भी सदूर हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया में आगे बढ़ के अपनी अफवाज को डिफेंड करें, और जो भी नरेटिव जो मुल्क दुश्मन फैला रहे हैं
वो हम उसके आगे शीशा पे लाइजवाज बने। तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है होना चाहिए कि मतलब हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग जीती है, हमारा ये भी होना चाहिए कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाज ए पॉलिटिकल होती है हमें सबसे अव्वल में आके उनको डिफेंड करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ऐसा करना ही जो हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब की तरवीज के मुताबिक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अब्दुल फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तलत चौहान साहब फ्रांस से सरपरस्त आला है जी। तलत चौहान साहब जी, उनकी बारी फिर बाद में आ जाएगी, अगर वो शायद लाइन ऑफ हो गई उनकी। तो असद अय्याब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ गई आवाज। जी 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 तलत साहब। वालेकुम। टाइम की नजाकत को सामने रखते हुए एक ही शेर कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जनाब तलत साहब। असद अय्याब साहब सरपरस्त आला है मुस्लिम लीग नून स्वीडन से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आप सब दोस्तों से मुलाकात करके, और मैं तो एक इशार अर्ज करता हूँ अल्लामा इकबाल साहब के। जी कहते हैं दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटानों पर। और फिर ये कहते हैं कि 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा। तो वो उसका पहला मिसरा ऐसा है कि 100 बार कर चुका है तो इम्तहान इश्क में अभी और भी। हमारा ये मुझे भूल गया, नेवर माइंड। जी बहुत शुक्रिया असद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू जी, हिस्सा लिया है और आपका बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी सऊदी अरब से जी महमूद डोगर साहब जी, अनम्यूट कर लेंगे। सऊदी अरब से एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उनके प्रेसिडेंट यूएसए गए हुए हैं, तो महमूद डोगर साहब जी। जी थैंक यू सो मच मिस्टर अब्दुल अली मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम आज की मौजूदा मीटिंग में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किरामी ज़ी कदर को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। मौजूदा हमारी जो हुकूमत है आज जोश और जज्बे के साथ 9 नवंबर को यौम पैदाइश अल्लामा हजरत मोहम्मद इकबाल मना रही है। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इंटरनेशनल अफेयर भी आज हमको इस जूम मीटिंग में इकट्ठा किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ ब्रेस्ट अमजद अली मलिक साहब के, आपने ये एफर्ट उठाई है। तो सब दोस्तों के पास टाइम बहुत थोड़ा, मैं सिर्फ एक ही शेर कहूंगा और इजाजत चाहूंगा। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया महमूद डोगर साहब आपका और आपकी कंट्रीब्यूशन का। अब आगे चलते हैं जी। हसनैन एजाज साहब मैं देख रहा हूँ अमेरिका से। हसनैन एजाज साहब जी अनम्यूट कर लें भाईजान। अस्सलाम जी, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया पे अपने डीपी में अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर और अपनी टाइमलाइन पे अगर आप हमें कोई एक फोटो फराहम कर दें अल्लामा इकबाल साहब की और साथ में कोई शेर और कोई भी एक लाइन, एक हफ्ते के लिए हम सब लोग उसको रखें तो एक यकजहती का एहसास होगा और नून लीग एक प्रोमिनेंट नजर आएगी सोशल मीडिया पर। अच्छी और जहां तक एक और चीज है कि डिक्टेटर के दौर में ये दिन मनाना बंद कर दिया गया था, कौमी छुट्टी खत्म कर दी गई थी। इसके लिए मैं नून लीग का बहुत मशकूर हूँ, तमाम कायदीन का, आपका, कि आपने ये छुट्टी बहाल की और हमें एहसास हुआ कि आज हम कोई दिन मना रहे हैं। और जो अल्लामा इकबाल ने हमें आज़ादी और मुसलमानों की आज़ादी और खुदारी का दर्स दिया, अगर उसको हम आगे लेकर चलें तो शायद उसकी अमली तफसीर जो है वो उसको इज्जत दो ही है, जिसकी जंग नून लीग लड़ रही है मियां साहब की क़यादत में। और मलिक हमजा साहब आपकी रहनुमाई हमेशा हमारे साथ रही है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमें आपसे जो गाइडलाइन मिलती है हम उसको लेकर आगे चलते हैं।
اور ہم جو ہے وہ ملک میں ایک آزادی کی جنگ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جس دور سے ہم گزرے ہیں مظالم برداشت کیے ہیں ہمارے قائدین نے، تو ہم نے تو صرف گالیاں سنی ہیں، ہمارے قائدین نے تو بہت زیادہ مظالم برداشت کیے ہیں. اللہ ان کو جزا دے. شکریہ. جی بہت شکریہ. اگلے اسپیکر سے پہلے میں شہباز شریف صاحب صدر جماعت اور پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا ایک پیغام پڑھنا چاہوں گا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ ایک عظیم فلسفی، مفکر اور ادیب ہی نہیں بلکہ قاری و مفسر قرآن بھی ہیں. ان کا کلام ذہنی و قلبی انقلاب کا ذریعہ تھا اور آج بھی وقت اور سرحد کی قید سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے. فکر اقبال پر چل کر پیام اقبال پورا کرنا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا پیغام تھا. میں اب دعوت دوں گا انصر بٹ صاحب سے، جنرل سیکرٹری ہیں PMLN جرمنی سے. پچھلی دفعہ مس بھی ہو گئے تھے ان کی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے، آج ان کو ذرا پہلے موقع دیتے. جی انصر بٹ صاحب. جی سر، بہت بہت شکریہ ملک صاحب، نہایت قابل احترام ہے آپ ہمارے لیے. آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب بانی پاکستان کا خواب دیکھنے والے جناب شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو. در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ ایک خواب، ایک نظریہ پیش کیا کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے کوشش کریں. اور اس وقت تو ان کے خواب کو ایک شاعر کا خواب سمجھا گیا، لیکن بہرحال انہوں نے پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ایک نظریہ دیا وہ آگے چل کر قیام پاکستان کا باعث بنا. ہم ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں ان کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں کرور کرو نصیب کرے. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور آج ہم ان کے یوم پیدائش پر انہیں یاد کر رہے ہیں، انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. آج جو پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کا عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہوا ہے. جس طرح پچھلے دور حکومت میں جس طرح پاکستان کی بربادی ہوئی ہے، جو پاکستان کے جو معاشی حالات، پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد اب الحمدللہ پاکستان کی جو ہماری حکومت پاکستان مسلم لیگ کی آئی ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا جو الحمدللہ آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ روشنی کی طرف، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے قائدین کو، جناب اپنا شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، کہ انہوں نے جس طرح محنت سے، لگن سے پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکالنے کی وہ تگ و دو کر رہے ہیں. ان کے اوپر جتنا بھی انہیں خراج تحسین پیش کیے جائے وہ کم ہے. اور ملک صاحب، آپ جو پاکستان مسلم لیگ کی تنظیم سازی کے سلسلے میں جو آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. تھینک یو، بہت شکریہ بٹ صاحب. میں اب جاتا ہوں جی جنرل سیکرٹری ہیں خالد محمود سلیریا صاحب، ساؤتھ افریقہ سے مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے بعد سہیل وڑیچ صاحب کی طرف چلتے ہیں کینیڈا سے. جی خالد سلیریا صاحب، اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. جی سر، بہت شکریہ. سر پہلے تو میں صدر صاحب ہمارے پاکستان کے سفر پہ ہیں، ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج میں یہاں حاضری لگاؤں، اور میں اپنا 1 منٹ لوں گا جی آپ سے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے 9 نومبر کے حوالے سے آج جو پروگرام رکھا ہے اس پہ میں آپ کو اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جوانوں کو میری سحر دے، جوانوں کو میری سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. جناب صدر ملک امجد صاحب، آج میں آپ کے سامنے جس بلند پایا ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ محض ایک شاعر نہیں تھے، وہ حقیقت میں ایک عظیم فلسفی اور بے مثال دانشور تھے.
بے پایا مفکر، सबसे बढ़कर मुसव्विर पाकिस्तान थे। जी मैं अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर इकबाल साहब की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि 1930 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो जो लॉर्ड था उसने अल्लामा साहब से बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपको जनूबी अफ्रीका, उस वक्त बरे आजम की 22-25 मुल्कों में वो जो इनकी रियासत थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको वहाँ बड़ी तगड़ी सीट थी, वहाँ सफीर बना के भेजता हूँ। तो आपने कहा उसके बदले में आपकी शराइत क्या है, मैंने क्या करना है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि लॉर्ड ने कहा कि अल्लामा साहब आप अपनी बीवी के साथ, अपनी रोजा के साथ हर फंक्शन में शिरकत करेंगे और आपकी बेगम स्कार्फ या बुर्का नहीं पहनेगी। तो अल्लामा साहब बड़े गुस्से में आए। उन्होंने कहा जिस चीज या ओहदे से गैरत का सौदा किया जाए मैं कभी वो नहीं करूंगा। और इससे साबित होता है कि अल्लामा इकबाल वाकई एक ग्रेट और अजीम आदमी थे। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफा थे और मेरा ख्याल है इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, जनरल यूब साहब जब सिंध ताश मुआहदा कर रहे थे तो जनरल साहब नेहरू के साथ, तो नेहरू ने जनरल साहब ने सवाल किया मीटिंग के बाद कि जनरल साहब ने नेहरू से पूछा कि पाकिस्तान का मुसलमानों का ताकतवर और कामयाब लीडर कैसे बना जा सकता है। तो नेहरू साहब ने चंद मिनट की खामोशी के बाद कहा कि आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को हिफज कर ले, आप कामयाब भी हो जाएंगे और मुसलमानों के दिल में जगह भी बना लेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, अल्लाह ताला आपका और आपके खानदान का मेहनत हो। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। मैं अब दावत खिताब देता हूँ जी सुहेल वड़ैक साहब को, सदर हैं हमारे मुस्लिम लीग नून कनाडा के। सुहेल वड़ैक साहब। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच मलिक अमजद साहब, आपने आज के दिन ये स्पेशली जो प्रोग्राम अरेंज किया इसकी मैं आपको स्पेशली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ कि चलते रहेंगे आपकी क़यादत के अंदर। तो मेरा ये मैसेज है या जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जो हमारे लिए चीज़ें छोड़ी वो क्या मिसालें थी, क्या चीज़ थी। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि ईमान, इताअत, यकीन के साथ, अल्लाह ताला के यकीन के साथ और मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है, जो उनका ख्वाब था वो आने वाले दिनों में ज़रूर कंप्लीट होगा और एक स्ट्रांग पाकिस्तान बनकर उभरेगा। इसके साथ साथ देखें जो अल्लामा इकबाल साहब ने अपना बरसगीर के मुसलमानों को जो अवेयरनेस दी, जो जिस तरह उनके जज्बात को उजागर किया, जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब की खिदमात हैं, मैं कहता हूँ कि जब वो अदालत में जाते थे, कोर्ट में जाते थे, क्योंकि शोभा के लिहाज से वो एक वकील थे, तो जब वो 500 या 600 रुपया उस वक्त कमा लेते थे तो वो समझते थे ये मेरी जरूरत पूरी हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हमें उनको फॉलो करना चाहिए और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे कायदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुझे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है कि जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं वो अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ख्वाब जो हैं वो जरूर पूरे करेंगे। हम सब साथियों को मिलजुल कर ये कोशिश करनी चाहिए कि मियां साहब की क़यादत के अंदर जब भी पार्टी के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें आए तो हमें उनको बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। यही अल्लामा इकबाल साहब का और कायदे आज़म साहब का जो है वो ख्वाब था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब दोस्त मिलजुल कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बाजू बने रहेंगे और अल्लामा इकबाल साहब के ख्वाब जो है वो पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच मलिक साहब। इसके साथ साथ मैं आपको, जनाब डार साहब को, जनाब मलिक नूर तनवीर साहब को भी स्पेशल मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पूरे ओवरसीज के अंदर जिस तरह मुस्लिम लीग नून को मुतहरक किया और हमें एक तस्बीह में दानों की तरह इकट्ठे कर दिया, अब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इसकी भी स्पेशल आपको और आपके सब क़यादत को मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और आज के दिन बाकी सब दोस्तों को, डार साहब की वापसी और मरियम बीबी की जो अदालत से उनको बिल्कुल फ्री किया गया, उसकी भी सब दोस्तों को मेरी तरफ से और PMLN कनाडा की टीम की तरफ से मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आपका, आपके ख्यालात का।
जी इरफान नागरा साहब चेयरमैन हैं PMLN कुवैत। जी इरफान नागरा साहब अनम्यूट कर ले अपना। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं मलिक साहब ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर जो कि आपके आने से माशाल्लाह बड़ा एक्टिव और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ओवरसीज चैप्टर के हमारे प्रेसिडेंट मोहतरम सागदार साहब का, मलिक साहब आपका चीफ कोऑर्डिनेटर है आप, और सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जनाब तनवीर साहब, सबका मेरे दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह जब से ये बागडोर संभाली है बड़ा एक्टिवली आप माशाल्लाह ये कौमी दिन के मौके पे हर जूम मीटिंग को अरेंज करते हैं। ये बड़ी एक आपने शानदार एक रवायत डाली है कि इससे कम से कम सब दोस्तों को आपस में एक जगह बैठ के उस पैगाम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और उसके साथ मैं इकबाल के हवाले से यहाँ ये अर्ज करूंगा जी कि जैसा कि इकबाल की सोच एक अफाकी सोच है, वो एक उस इकबाल की सोच में एक वुसअत है, उसकी सोच में एक सिर्फ एक खास कंटिनेंट के लिए या एक खास हिस्से के लिए नहीं है, उसमें जिस तरह की वुसअत है वो वुसअत ही हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी उस सोच को उसी सोच की पैरवी करते हुए आगे इस अपने पार्टी के मंशूर को, अपने प्लेटफॉर्म को आगे लेके उन्होंने चलना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस मौके पे ये फख्र करते हैं कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं कि जिसका कायद सेम आप कंपेयर करके देख लें कि इकबाल एक सच्चा आशिक रसूल, उसकी सोच में जिस तरह की एक आशिक रसूल वो जितनी उसके अंदर वो पाई जाती है मोहब्बत, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद साहब के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं चश्मे-दीद गवाह हूँ। एक सच्ची आशिक रसूल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अपनी इस सियासत को इस तरफ पे लेके चल रहे हैं उसका कोई भी दूसरा सानी नहीं है। और इसी तरह आप देखें कि हमारे कायद के दौर में जब उन्होंने ये सफर का मुल्क को आगे लेके जाना चाहा तो उन्होंने जनूबी एशिया का टाइगर बनाना चाहा पाकिस्तान को, सिर्फ एक खास हद तक उसको महदूद नहीं कर दिया। तो उसी तरह की अफाकी सोच हमारे कायद में पाई जाती है। तो मैं इसी अल्फाज के साथ ये फख्र करता हूँ कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं, हम उस कायद की रहनुमाई में सियासत कर रहे हैं और आगे अपना सिस्टम लेके ये सियासत का तर्ज अमल लेके चल रहे हैं कि जो कायद अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चा आशिक रसूल होने के साथ साथ हमारे दीन इस्लाम को महफूज रखने के साथ साथ हमें इस दुनिया के मामलात में भी जो हमारे दीन और इस्लाम ने हमें बताया उस तरफ पे लेके चलता है। तो इसी के साथ ही की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आप जी मीर अबरार साहब PMLN तुर्की के सदर मीर अबरार साहब जी 1 मिनट तक रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवर हो सके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक अमजद साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप इस तरह गाहे बगाहे हम सबकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यौम इकबाल तातील जो है वो काफ़ी अरसे से जो मुअत्तल की गई थी और मेरी जमात मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ साहब ने इसको दोबारा बहाल किया है। इससे इनके इक़्तिदार और रवायात के साथ जुड़े रहने का एक सबूत है कि ये अपने इक़्तिदार से कितने जुड़े हुए हैं। और जो कौमें अपने मौसलों को और अपने कायदीन को भूल जाती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो मैं अपने कायदीन का मशकूर हूँ और मैं एक शेर कहना चाहूंगा, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो हमारे नौजवानों की खुद ही तो सूरत फौलाद है लेकिन उसको अब नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको हमने पॉजिटिव लाना है ताकि हम पाकिस्तान की तरक्की में उन बच्चों को मस्बत तरीके से शामिल कर सकें। ये हमारे मुखालिफिन उनको पता था, इकबाल का फलसफा वो समझ चुके थे लेकिन उसको वो नेगेटिव यूज कर रहे हैं। तो हमें हमारा हमें तुल के हमें उनको पॉजिटिव की तरफ लेके आए। बहुत शुक्रिया मीर अबरार साहब। नदीम हफीज साहब सेक्रेटरी जनरल PMLN बहरीन, नदीम हफीज साहब। भाई अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अपने सामने स्क्रीन से अनम्यूट करें और फिर बोलें जी।
اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے ندیم صاحب. جی السلام علیکم برسٹ صاحب، بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ کا بڑا ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں کہ آج کے دن کا شکریہ انہوں نے بالکل تمام اوورسیز قیادت ہماری صدر محترم ڈار صاحب، جنرل سیکرٹری محترم نور تنویر صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اوورسیز میں بسنے والوں کو آپ نے ایک بڑا موقع فراہم کیا. آج ہم جہاں پر ہم شاعر مشرق مفکر پاکستان 145واں آزادی منا رہے ہیں، اوورسیز میں بھی رہتے ہوئے ہمیں اس کی شرکت کا موقع ملا. انڈیویجلی طور پر اپنے چیپٹر کے زیر پروگرام کرتے ہیں یہاں پر تمام اوورسیز کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور صدر محترم بھی کرنا چاہ رہے تھے، وہ سفر میں تھے تو اس وجہ سے شاید وہ شرکت نہیں کر سکے. اور شکریہ بہت. جی سر، تو میں ایک ساتھ کا استعمال کروں گا علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اپنے اختتام چاہوں گا. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شاہین ہے، یہ اپنی نوجوان نسل کے لیے. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اور بہت شکریہ سر، تھینک یو. میں بہت مشہور ہوں کہ اوورسیز کے انٹرنیشنل افیئر کے جنرل سیکرٹری بھی جوائن کر چکے ہیں نور تنویر صاحب، اور جناب محترم سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور وہ بھی ان کی ٹیم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے گی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کہ وہ بھی جوائن کریں. ہم دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. جی اب آگے چلتے ہیں. چیئرمین پی ایم ایل این جاپان ملک یونس صاحب، جی آگے تمام حضرات مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کور کر سکیں. میں نے اگلے 10 منٹ میں یہ ختم کر کے پھر جو مین اسپیچز ہیں اس کی طرف چلے جانا. جی 1 منٹ. جی چیئرمین یونس صاحب، جی اپنا ان میوٹ کریں بھائی، اپنا ان میوٹ کریں. جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی. جی السلام علیکم صاحب. سارے دوست جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے ببر شیر نواز شریف کے چاہنے والے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. کیونکہ آج علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا یوم ولادت کا دن ہے، تو میری طرف سے پوری قوم کی طرف سے مسلم لیگ نون جاپان کی طرف سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح ملک صاحب یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، یہ الحمدللہ جب ہماری حکومت آتی ہے ہمارے قائد یہ دن مناتے ہیں، اور پہلے بند تھے تو اب الحمدللہ آپ کی کاوشوں سے ڈار صاحب کی کاوشوں سے ہمارے جتنے بھی قائد ہیں ان کی کاوشوں سے آج ہی دیکھو پورے پاکستان میں بھی چھٹی منائی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے شہر کے ہیں، ہمیں یہی بہت فخر ہے. میری طرف سے السلام علیکم. ملک صاحب میں بہت مشکور ہوں، اگر آپ اسی طرح اسپرٹ رکھیں گے تو تقریباً تمام لوگوں کو موقع مل جائے گا. جی حافظ شمس صاحب، جی آپ بھی کچھ کہیں. حافظ شمس صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں ساؤتھ ایشیا سے، ہمارے ساتھ ساؤتھ ایشیا میں جتنے ممالک ہم نئے بنا رہے ہیں اس میں مدد بھی کر رہے ہیں. اور السلام علیکم. جی حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں سب سے پہلے آج اقبال کے شہینوں نے میچ جیت کر علامہ اقبال کو سالگرہ کا تحفہ دیا. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس چھٹی کا دن جو پرائم منسٹر نے منظور کیا، اور دوسرا جو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج صدر محترم اسحاق ڈار صاحب نے سود سے پاک نظام لانے کے لیے جو کوشش کی ہے، اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور دوسرا الحمدللہ 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اوورسیز میں آج پہلا موقع ہے کہ ملک امجد صاحب نے صدر اوورسیز اسحاق ڈار صاحب نے چودھری نور تنویر صاحب نے اور امجد صاحب کی کوششوں سے آج پوری اوورسیز کی مسلم لیگ
नवंबर 9 अल्लामा इकबाल का दिन मना रहे हैं। ये बड़े ही हमारे लिए फख्र की बात है कि पूरी दुनिया से जहां जहां मुस्लिम लीग के लोग हैं वो ये दिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए, मैं कहता हूं कि जिस तरह इन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, वो मुस्लिम लीग के खुद मुस्लिम लीग कायद की मुस्लिम लीग थी, और आज आपने ये प्रोग्राम करके साबित कर दिया है कि ये हकीकी मुस्लिम लीग है, और ओवरसीज आपको जिस तरह मुंतखब किया गया था उसका आपने हक अदा कर दिया है। हम आपको खराज तस्लीम पेश करते हैं, बेशुमार मुश्किलात की वजह से, बेशुमार इख्तलाफात की वजह से भी, लेकिन आपने हम सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है, और हम आपके नक्शे कदम पर इंशाल्लाह चलेंगे। और मैं इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि अगर हमने मुखलस होकर चलना है तो दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरापा मोम हो जा या संग हो जा। बहुत शुक्रिया मलिक अमजद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। चौधरी परवेज संदेला साहब, प्रेसिडेंट PMLN हॉलैंड। जी संदेला साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लामा इकबाल ने आज के मुसलमानों के लिए ही ये शेर लिखा था। जब तक कल मुसलमान इस शेर के मुताबिक चलता रहा, दुनिया पर राज करता रहा। जैसे ही अपनी पहचान और मजहब भूल गया, बसेरा अंधेरों में कर लिया, अब दुनिया भर में कमजोर होना शुरू हो गया। अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त आंख खोली, इस वक्त हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी शायरी से फिक्री इनकलाब को जन्म दिया और हम आजादी की मंजिल की तरफ गामजन हो गए। लेकिन आज अगर इकबाल होते तो शायद इनका ज्यादा वक्त अपने कलाम की वजाहतें करने में ही गुजर जाता है, ऐसी वजाहतें जो शायद बहुत से सियासतदानों और मजहबी जमातों के लिए भी काबिल कबूल न होती। इन हालात में न जाने अपने ख्वाब की तबीर मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में भी रह पाते या नहीं। आज पाकिस्तान के सियासी व मजहबी हालात पर हर दर्दमंद मुहब्बे वतन पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये हालात क्यों आए, हम नजरियाती इख्तिलाफात से आगे क्यों निकल आए, हमने सियासी मुखालफत को जाती मुखालफत क्यों बना लिया, हमारी सियासत में अदम बर्दाश्त नफरत क्यों किसने भर दी। क्या ये इसी दुश्मन का खेल है जिसके खिलाफ अल्लामा इकबाल ने कदम उठाया था। आज हमें इकबाल की खुद की बहुत जरूरत है, जो उन्होंने खुद ही का फलसफा बयान किया था। इस पर अमल करने में ही हमारी कामयाबी है। मैं इसी पर बात खत्म करूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लंबी के लिए माफी। और उसके बाद पंजाबी ਦੇ कहूंगा बहुत बहुत सारे मुबारक होवे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच गया। बड़े मियाँ साहब की मौजूदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ वर्ल्ड कप आया सी, ਤੇ छोटे मियाँ साहब की मौजूदगी ਦੇ ਵਿੱਚ इंशाल्लाह छोटा वर्ल्ड कप आएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत शुक्रिया जी। ये थे चौधरी परवेज संदीला साहब, प्रेसिडेंट PMLN हॉलैंड। ख्वाजा अदनान अकरम भट्ट साहब स्पेन की नुमाइंदगी करेंगे जी। ख्वाजा अदनान भट्ट साहब, इनके सदर साहब ने लगाई जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने जनाब सदर आरिफ साहब की तरफ से माजरत खा हूँ, उन्होंने किसी मेहमानों को ठीक करना था। जनाब ये आज बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम अपने जो मुफक्किर पाकिस्तान और जो कायद आज़म के जो बेहतरीन साथियों में से एक साथी थे अल्लामा इकबाल, जिनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, तो शायर मशरक़ और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल जो हैं, उनकी यौम विलादत पर सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी के जरिए उम्मत मुसलमा जो है उसको जैसे जिस तरीके से बेदार किया, वहदत का पैगाम दिया, वो हमारे लिए आज भी मदरसा बड़ा मशले रहा है। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा अल्लामा साहब को फॉलो करते हैं। अल्लामा साहब ने एक बात कही थी, हरम पाक भी है, अल्लाह भी है, कुरान भी एक, यानी कि हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। तो ये सबसे बड़ी फिक्र थी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जो कि जब वो पैदा हुए सन 1877 में, तो उसके बाद आप देखें कि उनकी पैदाइश से लेके आज अगर हम देखें तो उनके नजरियात को जो है वो बुलाया जा चुका है। हमारी कौम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी फिक्र की जो है वो फिक्र नहीं करते, और अलामा को जो है वो अलामा इकबाल जी अलामा मोहम्मद इकबाल साहब के सिलेबस को जो है वो हमारे मज़ामीन से निकालते हैं।
तो मेरी सबसे पहले अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनसे गुजारिश ये है कि आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने उनको इकबाल की फिक्र से रोशनास करना है तो प्लीज खुदारा पाकिस्तान के अंदर जो मज़ामीन है अल्लामा इकबाल के निकाले गए हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जिस तरीके से उनकी जो है 9 नवंबर की जो है वो जो तब्दील होती है उसको दोबारा किया गया है। तो मेरी तरफ से जनाब तमाम दोस्तों को जो है वो अल्लामा इकबाल की पैदाइश के ऊपर बहुत ज्यादा मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब, थैंक यू जी। जुल्फकार अली साहब सेक्रेटरी जनरल हैं बेल्जियम से, जुल्फकार अली साहब जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे कुछ अर्ज करने का मौका दिया। तो मैं अल्लामा इकबाल साहब के शेर से शुरू करता हूँ। ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। बैसियत मुस्लिम लीगी, चूंकि अल्लामा साहब मुस्लिम लीगी थे और सदर भी थे और उन्होंने ही 2 कौमी नजरिया पेश किया था खुतबा इलाहाबाद में। तो मेरी गुजारिश है कि हमारी हुकूमत अभी मुस्लिम लीग की है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि अल्लामा साहब और कायद आज़म के जो दिन है, इस तरह के जो नेशनल डे होते हैं, उनको बड़े ज़ौक़ शौक से जोर शोर से मनाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो ये मेरी गुजारिश है और इंशाल्लाह ये करेंगे भी, आगे भी होगा इंशाल्लाह, या आप कोशिश कर रहे हैं, हम सराहते हैं आपकी कोशिशों को। दूसरी बात ये है कि अल्लामा इकबाल का जो फलसफा था खुदी और शहीन, इसको भी समझने की जरूरत है और उसकी झलक आज मुझे नजर आई क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान के शहीदों ने आज जो करके दिखाया, यही अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अब चलते हैं जी आगे। जी शराफत साहब, अली शराफत साहब, आप भी कुछ शेर पढ़े जी, बताएं जरा क्विकली। अनम्यूट कर लें अली शराफत साहब, PMLN ऑस्ट्रिया के सदर हैं हमारे, अनम्यूट कर लें जी। जी मुख्तसर अली साहब। बिल्कुल जी। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना लेती हैं, मगर सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। इस सिलसिले में बस इतना अर्ज करूंगा कि हमारे मियाँ साहब सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ है। क्या क्या मुसीबतें हैं जो उनके ऊपर नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको फिर अरूज दिया और इंशाल्लाह चौथी बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी अली शराफत साहब जी। सलमान भट्ट साहब यूके से, बरतानिया से जी। सलमान भट्ट साहब कुछ कहेंगे अल्लामा इकबाल के? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे दावत दी। इकबाल डे पे सर आपका मुझे मैसेज आया तो मैं बड़ा गमगीन हुआ कि मुझे तब पता चला कि इकबाल डे जो है वो आ रहा है। ठीक है, किसी ने इकबाल को समझने की जहमत नहीं की। मैं जब भी इससे बात करता हूँ दोस्तों से तो बड़ा अफसोस होता है। खुदी के फलसफे की यहाँ पे बहुत ज्यादा बात हुई, तो हमें इस खुदी के फलसफे को थोड़ी समझने की जरूरत है। ये चंद चार पेश करूंगा, एक शेर चले ठीक है। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया, वो ज़ेबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्ने बेमिसाल वो जमाल खो गया, डूबे जो जवाबों में मगर सवाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामरान मलिक साहब जी, PMLN कनाडा के जनरल सेक्रेटरी हैं टोरंटो से जी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको और PMLN इंटरनेशनल को बहुत बहुत मुबारक ये तकरीब मुनक्किद करने पे और PMLN इंटरनेशनल को फाल करने पे। जिस चीज का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब 1930 में देखा था और जिसको लेकर कायद आज़म की क़यादत में पाकिस्तान हासिल किया गया, और जो गैरों की गुलामी से आज़ादी की जंग थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन जो अपनों से गुलामी की जंग है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज तक हम भी लड़ रहे हैं और ये जितने सिपाही यहाँ बैठे हैं वो सब उसमें शामिल हैं। आज भी हमें उतने ही मुश्किलात और उतनी ही तकालीफ हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं जितनी कि शायद उस वक्त भी नहीं थी। तो आज हम मेरा ख्याल में मियां साहब का जो फलसफा है, जिसकी जो इकबाल के फलसफे पे जिसकी बुनियाद है, और अगर हम देखें जो आज़ादी की एक जंग है पिछली 30 साल से लड़ी जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हम वो जो अपनों की गुलामी है उससे आज़ादी हासिल कर सकें और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही और जमहूरी मुमलिकत बना सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, कनाडा से थे जी। नूर राही साहब हैं जद्दा से। नूर साहब आप भी कुछ कहें, अच्छा नहीं लगता बुजुर्ग बैठे हैं
तो आप रह न जाएं। जद्दा से नूर अराइन साहब, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ईस्ट के, और 7 पुराने जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है मलिक साहब? जी आ रही है जी। जनाब सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सबसे पहले जो है पहली दफा सबसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। ये इकबाल डे के ऊपर डॉक्टर इकबाल साहब ने पाकिस्तान की बड़ी ख्वाब देखी थी और अल्लाह ताला ने जो है उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने इंशाल्लाह तामीर जो है सारे ये कदम उठा के जो है उन्होंने तामीर किया। तो इंशाल्लाह आगे भी जाके मुस्लिम लीग जो है वो इन मामलात में जो है ना बहुत सबसे आगे होती है। और दूसरा हमारे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का माशाल्लाह मिस्र का जो है इजिप्ट का दौरा था, मीटिंग थी, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, सब लोगों ने देखा, बड़ी खुशी की बात है। तो ये मलिक साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आप सब दोस्तों को जो है ना इकट्ठा करके जो है ना मुलाकात करा देते हैं, ये बड़ी आपकी किस्मत की बात है जनाब। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत मेहरबानी, वक्त कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। सलीम खान साहब जी, हमने नया चैप्टर तश्कील दिया है हांगकांग से, तो ये वहां से सेक्रेटरी हैं जी सलीम खान साहब। अपने आप को अनम्यूट करें जी सलीम खान साहब, हमारी तरफ से साहब को सलाम भी दीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जी। माशाल्लाह मलिक साहब आपका बहुत ये काबिल तहसीन इकदाम है जो आप इस तरह से ये अरेंज करते हैं, बड़ी बड़ी खुशी हुई है। तो मैं एक शेर से अपना आगाज करूंगा जी। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। तो माशाल्लाह जी ये इकबाल साहब का जो फलसफा है खुद ही का, हमारे कायद इसी को लेकर चले हुए हैं और हमारे जितने भी PLMN के वर्कर हैं पूरी दुनिया में वो मियां साहब के साथ इसी तरह से डट के खड़े हुए हैं, हर मुश्किल में, हर आसानी में, और इंशाल्लाह साथ रहेंगे और इकबाल के नजरिए को लेकर हम अपनी पाकिस्तान को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमिर जवेद साहब स्विट्जरलैंड से, जी आमिर साहब अनम्यूट करें अपने आप। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ इल्लामा इकबाल के इस खूबसूरत दिन के मौके पे। पूरी दुनिया में जितने भी हम अपने सोशल मीडिया के PMLN के वर्कर हैं, हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे और शम्ए जमहूरियत मरियम नवाज जिंदाबाद। सिर्फ एक शेर कहेंगे, इकबाल ने क्या खूब कहा है, बेज़ौक नहीं अगरचा फितरत, जो उससे ना हो सका वही तू कर। सबको सलाम जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अब चौधरी अंसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लीगल विंग के सदर हैं UK से। चौधरी अंसर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? चले दोबारा चेक करते। गुलाम मुस्तफा साहब, गुलाम मुस्तफा साहब मुस्लिम लीग नून UAE के सदर हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, मेरा ख्याल अभी वो लाइन सीधी कर रहे हैं जी। मलिक इश्तियाक साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। मलिक इश्तियाक साहब जी, मलिक इश्तियाक साहब सुन रहे हैं आप हमें? मलिक इश्तियाक साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, अनम्यूट करें जी, अनम्यूट करें पहले अपने आप को। अब आ रही है सर? अब आ रही है जी, अब आ रही है जी। सर मेरी तरफ से सर लामा इकबाल साहब की विलादत पे सब दोस्तों को मुबारक हो। थैंक यू जी। और जो लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा है वो हमारे मियां साहब भी पूरा करेंगे और इन्हीं की कोशिशों से पूरा होगा। और लामा साहब ने जो है ना कि अपना लोहा मनाया है, और क्योंकि जर्मन में रोड तक उनके नाम पे चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना कि उनका मैंने जिस यूनिवर्सिटी में थे वहां पे भी मैं गया हूँ, देखा है, तो आज दिन तक वो नाम ले रहे हैं लामा इकबाल साहब का। और बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, थैंक यू जी। एहसन मसूद साहब हमारे साथ हैं सऊदी अरब से। एहसन मसूद साहब,
जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। कोई ऐसा कोई शेर पढ़ दे, आपका इसका टर्न है। हाँ जी सर, बातों से दबने वाले ऐ आसमां हम नहीं, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये समय शेर डेडिकेट टू एवरीबॉडी ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। एहसन, एक जो अब खवातीन की तरफ चलते हैं, हमारे पास 2 बहनें हैं। साउथ अफ्रीका से पेट्रन है शाजिया शौकत, अगर वो लाइन पे हैं तो वो अपना हिस्सा डाले। और मारिया सिद्दीकी है, पहले शाजिया शौकत की बारी है, फिर मारिया सिद्दीकी की। मारिया सिद्दीकी डेप्यूटी हेड है विमेन विंग सऊदी अरब रियाद से। जी शाजिया बहन, आप जरा अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी आपने फिर अनम्यूट कर लिया, अनम्यूट करें। जी अब अनम्यूट है, अब आ रही है आवाज। जी अस्सलाम पहले वालेकुम आपके काम जी। को सराहते हैं, आपने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया है और हमें रिपोर्ट मिलती रहती है, और हमें आप खवातीन बहनों के ऊपर बड़ा फख्र है, क्योंकि ये पहली दफा ओवरसीज में ऐसी ड्राइव है जिसके जरिए खवातीन को इस लेवल के ऊपर एंगेज किया गया है, और सेनेटर नुज़रत सादिक आपके साथ डील भी कर रही हैं। तो वेलकम, एंड आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक हमारी जो ओवरसीज की ड्राइव है उसमें हिस्सा लिया। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आज इल्लामा इकबाल की पैदाइश के दिन पर मुस्लिम लीग नून साउथ अफ्रीका खराजे तहसीन पेश करती है। डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर और शायर मशरिक़ है। इनकी शायरी मुसलमानों के लिए थी। आज इनके खुदी के फलसफे पर अमल पैरा होने की जरूरत है। इकबाल ने एक ख्वाब देखा, कायदे आजम ने इसे पाया, तकमील तक पहुंचाया। मोमन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या ये इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है? हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इकबाल के शहीनों को ईमान, इत्तेहाद और यकीन मुहक्कम की रोशनी दिखाएं। हमारा सरमाया हमारी नौजवान नस्ल है, और ये हमारी माएँ बहनें इनकी अमीन है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इकबाल के पाकिस्तान को फितना परवरी से बचाएं और उनको इस बुलंदियों पर लेके जाएं जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाजिया बीबी। थोड़ा जी बहुत शुक्रिया। आपको काम मिला है, लेकिन हम बड़े मशहूर हैं कि आज आपने ज्वाइन किया। जी मारिया बीबी आप ज्वाइन कर चुकी हैं। मारिया सिद्दीकी आप ज्वाइन कर चुकी हैं। अंसर चौधरी साहब जी लीगल विंग के सदर हैं लंदन से। अंसर चौधरी साहब जी आप हिस्सा डालें। जी अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें। जी कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं जनाब मेरे भाई बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरसीज, जनाब प्रेसिडेंट इसाक डार साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब और जितने मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज इस अच्छे दिन के मौके पे मैं अपने इल्लामा इकबाल साहब के शेर से शुरू करूंगा कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। मैं समझता हूँ कि आज हमें उनका जो ख्वाब है हज़रत अल्लामा इकबाल का, जो उन्होंने आज से कई 100 साल पहले देखा, और इस खुदादाद जो मुल्क पाकिस्तान उनके तस्वर के बेस पे जो सामने आई, मैं समझता हूँ कि उसको रियली जो डेमोक्रेसी थी, जो रूल ऑफ लॉ था, जो पाकिस्तान में जो उनका ख्वाब था, उसको हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा किया, और उसके बाद हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी अनथक मेहनत और लगन से पाकिस्तान में इतने काम करके, डेवलपमेंट करके, सारी चीजें करके कौम को एक राय रास्त पे लेके आए। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए बसूते कौम, और दुआ करनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, जितने लीडिंग हमारी पार्टी के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए और डेवलपमेंट के लिए। मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था उसकी ये तबीर है। आप दुआ करें सब ओवरसीज में बैठे लोग कि अल्लाह ताला हमारे कायद को जल्द पाकिस्तान में लेके जाए, और जैसे वो पहले उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है उसी तरह वो दोबारा जाके खिदमत करें। बहुत शुक्रिया अंतर भाई, आपने शिरकत की लंदन से।
जी थैंक यू वेरी मच। हमारे आखिरी जो मेहमान है, मैं मारिया सिद्दीकी को दोबारा देखता हूँ, अगर वो है तो वो खिताब करें, नहीं तो हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ चलते हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, MNA हैं, दुबई में बहुत अरसा सदर रहे हैं, OPF के बोर्ड पे रहे हैं, और आजकल जो है हमारी नुमाइंदगी पार्लियामान में कर रहे हैं। MNA हैं बहावलपुर से, मेरे भाई दोस्त और आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के हर दिल अजीज चौधरी नूर तनवीर साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे दावत खिताब देते हैं। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुहतरम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपने बड़े ही अच्छे अल्फाज से जो है ना मुझे याद किया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। अर्ज ये है कि आज आपने जो ये कदम उठाया है, इसकी अहमियत और भी बढ़ गई कि ये बड़े अरसे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने हजरत अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के दिन के रोज आपको उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया कि पाकिस्तान में जो है उनके नाम से ही होगी। और जिंदा कौमें जो हैं वो कभी अपने मौसमों को भूलती नहीं है, उनका जिक्र करती हैं, उनके एहसानात को याद करती हैं। और फिर हम वो हैं जिन जो आज यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये उनकी सोच और उनकी जो उनका ख्याल था, जिनका तखय्युल जो था, जो सबसे पहले बहसीयत सदर जो उन्होंने इलाहाबाद में पेश किया। और आप एक शायर, मुसन्नफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की वो अहम शख्सियत थे जिन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो ढूंढा और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खत लिखा कि आप बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों की रहनुमाई करें, आप बर्र-ए-सगीर पाकिस्तान बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों की को लीड करें। तो एक अच्छा शख्स जिसने ढूंढ के एक बेहतर शख्स को लगाया। अगर ये आपकी तारीफ नहीं है, बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ कि आपने जब से ये ओहदा संभाला है, मनसब संभाला है, आपने तो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा और सदर के ओहदे को भी पीछे मात कर दिया है। सारे पासे तुसी नजर आते हैं माशाल्लाह। आपने जो बेहतरीन काम किया है और जो जिस तरह से आपने परोया है इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंटरनेशनल अफेयर्स को, मैं ये समझता हूँ कि ये इतना आसान ना था। और इंशाअल्लाह तबारक ताला इसी जज्बे के तहत जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफा फिर पाकिस्तान में होंगे। और वो है ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए है। हजरत अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो आप तो वहां बैठ के वहां यूके में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, आपने इसको सच कर दिखाया। और फिर ये कि कायदे मोहतरम के लिए है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। और आपको पता है कि जो कौमों में जो खामी होती है या पस्ती होती है, उसका एहसास लीडर करता है और फिर लीडर जो है उनको विजन देता है। वो विजन लेके जो है वो नजरिया लेके आगे बढ़ता है। और हम आज भी उस नजरिए के ऊपर कायम है, और वो ये है कि पाकिस्तान में वोट की इज्जत हो, ताकत का चश्मा जो है वो अवाम है, अवाम के मर्जी से हुकूमतें आए, अवाम की मर्जी से हुकूमतें जाएं। और मैं आपको यहाँ पे आपका टाइम जो है ना बड़ा शार्ट है, लेकिन ये मुझे इजाजत जरूर दें कि आज के हवाले से थोड़ी सी बात करने की, कि यकीन करें कि मीडिया के जोर पे जो नजर आता है ना, खुदा न खास्ता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको कमजोर लगती है। ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त तक ही कमजोर है जब तक हमारे कायद तशरीफ नहीं लेके आते। अब एक आदमी है वो मैदान में मौजूद है, दूसरा जो है वो मैदान में मौजूद ही नहीं है। जो हम कहते हैं जी कि प्लेइंग जो है ना एक जैसी होनी चाहिए, तो वो इसलिए कहते हैं
کہ پلینگ فیلڈ ایک جیسی ہو تاکہ ہمارے قائد ہمارے درمیان ہو, محترمہ مریم نواز ہمارے درمیان ہو. اور آج بھی آپ عددی اکثریت رکھتے ہیں, جہاں جس جگہ مرضی جائیں عمران خان کا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس وقت حکومت پنجاب اور کیٹی کی حکومت کے زور کے اوپر 10-10, 12-12, 20-20 لوگ لے کے انہوں نے موٹر ویز بند کیے ہوئے ہیں. یہ اصل طاقت نہیں ہے ان کے پاس. اصل طاقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے, عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور یہ 4 سال جو اس نے گل کھلائے ہیں اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی ترویج کی ضرورت ہے, ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے قائدین سے کہوں گا کہ اس کو روزانہ کی بنیاد اس کو ڈھیل نہ دے. عمران خان کوئی شے نہیں ہے بالکل, لیکن اس وقت تک یہ شے جب تک آپ میدان میں نہیں ہے, لہذا آپ میدان میں موجود ہوں. اپنی جو پریزنس ہے وہ آپ رکھیں. جب آپ پریزنس اپنی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوتے جائیں گے. آج جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب میں نے ابھی دیکھا ہے کہ شاید لندن پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ, وہاں سے مصر سے آگے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے یہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 11 ماہ آپ کی حکومت ہے, اس کو پوری قوت سے زور سے وہاں کی خدمت کے لیے لگائیں. اور وہ دن انشاءاللہ تعالی آئے گا جب قائد تشریف لے کے آئیں گے. عمران تو ہنون انشاءاللہ تعالی لبے ابھی کتنی لبنا جتنی ایکسپوز ہو گیا ہے, جتنا انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی آپ انٹرنیشنل مسلم لیگ میں سے میں کہتا ہوں کہ آپ جناب امجد ملک سے بھی کہتا ہوں کہ ایک کنونشن جو ہے ہم رکھتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے, آپ قائد وہاں آپ کے پاس ہیں, ان سے آپ کہیں پورے جو آپ نے جتنی تنظیمیں بنا دی ہیں جو 30 کے قریب 32 ہیں, ان سب کو ان کے میکسیمم لوگوں کو آپ پاکستان بلائیں تاکہ ہم ایک کنونشن کروائیں, اپنی قوت کا اظہار کریں. اور ہمیشہ جو آپ کی ایگزسٹنس جو ہوتی ہے نا, وہی جب تک آپ وہ شو نہیں کرتے اس وقت تک دنیا نہیں جانتی. لیکن جب اپنی طاقت قوت شو کر دیں گے, آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے اوورسیز کے ووٹ کے حق کو جو انہوں نے روکا تھا اور کہا کہ انڈیپینڈنٹ جو سیٹس جو آنے والی ہیں, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ بل جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پیش ہو جائے گا. اس کو پیش کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کر دی ہے اور آپ جلد دیکھیں گے. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں دوست پورے دنیا سے اچھے آسٹریلیا سے, امریکہ سے, یو کے سے, گلف کنٹری سے کم از کم 10 ہم نے پرپوز کی ہیں, اس میں سیٹس جو ہیں وہ آئیں. اور جو متناسب نمائندگی کے تحت جو پارٹی جب جیتے گی اسی حساب سے ان کی جیسے خواتین کو نشستیں ملتی ہیں ویسے جو یا منارٹیز کو ملتی ہیں اسی حساب سے آپ کو ملیں گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی ایک دن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, سینٹ میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہ جلد قانون سازی بھی ہو جائے گی. اور آپ قائد محترم سے میری طرف سے بھی, آپ وہاں پہ ہوتے ہیں, میری طرف سے بھی آپ گزارش کریں ان سے کہ یہ ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا جو کنونشن جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ہدایت فرمائیں وزیر اعظم صاحب کو کہ پہلی فرصت میں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کا جو اوورسیز پاکستانی پھر تم نے پورے گلف کنٹریز میں لوگ غریب لوگ ہیں اور وہ اپنے گھروں میں جو پیسے بھیجتے ہیں, پاکستان میں مہنگائی تم کر کے گئے ہو, تمہیں کون دے گا ووٹ؟ کوئی اس کو ووٹ چھوڑ نہیں دے گا. کہ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ یورپ اور امریکہ میں چند جو لوگ ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے, جن کے کوئی اسٹیکس نہیں ہے یہاں پہ, اور پتہ نہیں وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے شور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گے. اور قائد اور حضرت علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے اوپر اگر میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہ لوں, ان کی خدمات کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے محسنوں کو اور ان کے لیے ہم ہر وقت دعا گو ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے,
اور ان قبروں کو جنت کا اعلیٰ درجے کے اوپر ان کو جنت کے باغ بنائے، اور ہمیں مسلم لیگیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کی عوام کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ انٹرنیشنل افیئر زندہ باد، جناب اسحاق ڈار صاحب اور جناب امجد ملک صاحب زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ پریشر پایا سی تسی مینوں گل کرن دا موقع، میں جلدی سمیٹیا اینوں، تو بہت بہت شکریہ۔ اور میرے تمام دوست جو ہیں میرے، جتنے بھی جہاں سے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، میرا آپ کو بہت بہت سلام ہو، اور میری خواہش ہے کہ آپ جلد پاکستان تشریف لائیں، اور جب بھی پاکستان تشریف لے کے آئیں مجھ سے رابطہ ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کو کم از کم اسلام آباد میں ویلکم کہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے تعلق اور واسطہ جو ہے انشاءاللہ پھر آپ میرا پرائیویٹ تو ہے ہی نا، کم از کم وہاں پہ تو ملے گا انشاءاللہ۔ جی ماریہ صدیقی نے آپ کوئکلی اپنا میسج دیں، اس کے بعد ایک میسج چلانا ہے، تو پھر عادل منصور صاحب دعا کروائیں گے ناروے سے۔ جی ماریہ بہن آپ جزاک اللہ سر، تھینک یو۔ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری آواز سنی جا رہی ہے، اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا شعر ہے، بس فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ملک امجد صاحب جس طرح آپ نے یہ گلدستہ بیرون دریا کچھ نہیں تھی، ملک امجد صاحب جس طرح آپ نے یہ گلدستہ سجایا ہوا ہے نا، بہت بہت شکریہ ہم سب خواتین کی طرف۔ تھینک یو بہن، آپ کا بھی بڑا کردار ہے، آپ ریاض سے ہماری مدد کر رہی ہیں اور خواتین کو مسلم لیگ نون کے جھنڈے کے نیچے لا رہی ہیں۔ میں بڑا مشکور ہوں، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ لوگ آپ کا پیغام سنیں۔ میں بس ایک میسج چلانا چاہتا ہوں، ڈار صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے، لیکن ایک میسج جو ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب کا میں چلانا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ ایک سیکنڈ بس دیجیے گا۔ مبین کیسے چلانا، اب چلا دو۔ پوری قوم کو مفکر پاکستان علامہ اقبال کا 145واں یوم پیدائش مبارک ہو۔ علامہ اقبال ہمارے وہ مفکر ہیں جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور ہمیں آزادی کے راستے پر گامزن کیا۔ انہی نے قائد اعظم کو دریافت کیا اور قائد اعظم کے ہاتھ میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی امامت دی کہ وہ انہیں ایک آزاد وطن دلوائیں۔ علامہ اقبال کے اشعار، ان کی فکر آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کا راستہ فکر اقبال کو پانے میں ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں فلسفہ خودی کو ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر یقین پیدا کرو، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اسی طرح اقبال کا تیسرا فلسفہ شاہین ہے، ان کا مرکز نوجوان تھے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تار۔
जी बहुत शुक्रिया फॉर बेयरिंग विद मी। अब इसको कंक्लूड करते हैं जी। आदिल मंसूर साहब नॉर्वे से दुआ करवाएंगे। आप एक शेर भी पढ़ना चाहते हैं, पहले शेर पढ़ लें एक और फिर दुआ करवा दें। जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें जी आपकी आवाज आ रही है। आप अपना एक शेर पढ़ लें, आपने रिक्वेस्ट किया और साथ फिर आप जो है वो दुआ करवा दें। जी जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका दिया। तो दुआ के लिए सबसे पहले तो ये अल्लाह के नबी ने भी ये फरमाया कि जब भी आप दुआ करें तो उसमें अल्लाह की बड़ाई भी हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी हो। उसी हवाले से मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ देता हूँ। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका, नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, यूं तो मिर्जा भी हो सैयद भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को सादम हयात रहती दुनिया तक कायम और दायम रख। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान का जैसा ख्वाब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, वो पाकिस्तान को तरक्की की औजे सुरैया पे देखना चाहते थे, वो पाकिस्तान की कदम मंजिल देखना चाहते थे, पाकिस्तान को उफक पर उभरता हुआ एक सूरज बनाना चाहते थे, वो पाकिस्तान की बका चाहते थे, वैसा ही पाकिस्तान बना दे। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लीडर जो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जो सरगर्दा है रात और दिन के पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, या अल्लाह हमारे वजीर आजम को तौफीक नसीब फरमा दे कि वो पाकिस्तान को अजमत बख्शें, अरूज बख्शें और इसको इस्लामी फलाही रियासत बना दें। और या अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फितने उठ रहे हैं इस्लाम के रास्ते में, जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जो सेहूनी कुव्वतों के कार फरमा है, जो पाकिस्तान में इस्लाम के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नाकाम और नामुराद बना दे और पाकिस्तान के जो है ना आवाम को शऊर नसीब फरमा दे, वो पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए कायम करें, वो इस्लाम के लिए वो कायम करें, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छी कौम बने और पाकिस्तान का नाम दुनिया के चप्पे चप्पे पे रोशन हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, अपने कीमती वक्त उन्होंने निकाला है, कुर्बानी के साथ बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तमाम जायज ख्वाहिशात को अपने हजूर में कबूल और मंजूर फरमा ले। और इस मौके पर अल्लाह के इन खैरों को मांगा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन खैरों में हमें भी इसका नसीब फरमा दे। अल्लाह के नबी ने जिन हुजूर से पनाह मांगी है, या अल्लाह उससे हम सबको बचा ले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने शिरकत की। कुछ दोस्त जो हैं वो लेट आए हैं या कुछ लोग जो हैं वो आज हिस्सा नहीं डाल सके। मैं हाफिज साहब को स्वीडन से देख रहा हूँ, रफाकत साहब PMLN बहरीन के सदर दबाद में आए हैं, और भी एक दो दोस्त जो हैं मुझे नजर आ रहे हैं जो बोल नहीं सके। भट्ट साहब हैं कनाडा के चेयरमैन हैं, तो इन सब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ज्वाइन किया। कोशिश करेंगे कि अगली मुलाकात आयत की सालगिरह के अराउंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर मौका देंगे। पाकिस्तान और उसका जिंदाबाद जिंदाबाद।